चलिए लेट अस resume our lecture on solution. In the last lecture I had finished with all the four colligative properties. मैंने आपको चारों colligative properties बड़े डिटेल में elaborate कर दी थी। मैं एक बार उन colligative properties को यहाँ पर लिख भी देता हूँ जो हमने चार colligative properties को डिटेल में elaborate करा था। First is relative lowering in vapor pressure, that is given by PA naught minus PA upon PA naught is equals to XB. Another colligative property was elevation in boiling point, and it was given by delta TB is equals to KB into weight of solute upon molecular mass of solute upon 1 upon weight of solvent in kg. उसके बाद we had discussed with depression in freezing point, and it is given by delta TF KF into WB MB, again weight of solvent in kg. And the last which we have discussed is osmotic pressure. Osmotic pressure denoted by pi and is given by CR. C means moles of solute, molality upon volume in liter, moles of solute, weight of solute upon molar mass of solute upon volume in liter of solution, into R into T. कुछ इस तरीके से मैंने आपको चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बड़े डिटेल में एक्सपैंड करके एलाबोरेट कर दी थी। मैं बिल्कुल ठीक वहीं से कंटिन्यू करता हूं। अब देखिए यहां से मैं एक बात कंक्लूड कर सकता हूं। मैं एक बात क्या कंक्लूड कर सकता हूं? मैं यहां से एक बात कह सकता हूं, these all colligative properties depends upon, that is B, these all colligative properties are inversely proportional to the molecular mass of solute. आप ध्यान से देखें, सभी colligative properties जो हैं molecular mass of solute के inversely proportional है। Hence we can conclude that all colligative properties are inversely proportional to molecular mass of solute. Molecular mass of solute. That is mass of solute. We can conclude this. इस बात को हम conclude कर सकते हैं ना। मैं इसी समय जो मैंने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की कुछ बातें बताई थी, कुछ 3 से 4 पॉइंट्स बताए थे, मैं उन पॉइंट्स को दोबारा से एलाबोरेट करता हूं। मैंने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए कुछ 5-6 पॉइंट्स बताए थे, मैं उन पॉइंट्स को दोबारा से एलाबोरेट करता हूं। We used to say those properties
which depend upon the number of solute particles and independent to the nature of the solute particles are termed as colligative properties. वह प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है और उसके नेचर से इंडिपेंडेंट होती थी, उन्हें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहा था. These colligative properties depends upon the solvent, upon the nature of solvent. अलग अलग सॉल्वेंट के लिए अलग अलग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को देखना है हमने. अलग अलग सॉल्वेंट के कर देने से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंस आ जाता है, फर्क आ जाता है. द सोल्यूट मस्ट बी नॉन वोलेटाइल, वह जो सोल्यूट होना चाहिए वह नॉन वोलेटाइल होना चाहिए. The concept of colligative properties is applicable only to diluted solutions. Colligative property का जो concept था वह सिर्फ diluted solution के लिए ही applicable था. And the last, the very most important point is the solute must not associate or dissociate. Solute ना तो associate होना चाहिए ना ही dissociate होना चाहिए. That's the point. That's the point of my concern now. इसी पॉइंट के बारे में मुझे बात करनी है. देखिए, मैंने बताया था there are some solutes, कुछ solute ऐसे होते हैं which may undergo dissociation. जो पानी में डाल देने से, सॉल्वेंट में डाल देने से it may undergo dissociation. और वहां पर dissociation हो जाने से that number of solute particles get changed. number of solute particles में परिवर्तन आ जाता है और number of solute particles में परिवर्तन आ जाने से इन colligative properties में भी परिवर्तन आ जाता है. Similarly, we have got some solute which may undergo association. कुछ solute ऐसे हैं जो associate हो जाते हैं. Associate करने पर number of solute particles कम हो जाते हैं और नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स में परिवर्तन आ जाने से, चेंज आने से देयर विल बी अ चेंज इन द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बिहेवियर में भी चेंज आ जाता है. हम कहते हैं एट दैट कंडीशन these properties start behaving abnormally. At that condition these properties start behaving abnormally. ऐसी कंडीशन पर ये प्रॉपर्टीज नॉर्मली बिहेव नहीं करती, यह एबनॉर्मली बिहेव करती है. ये इन इक्वेशंस को होल्ड नहीं करती. जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं अंडर द सर्कमस्टेंसेस ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ये जो चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है इनके एक्सप्रेशंस मैंने लिखे हुए हैं. अंडर द सर्कमस्टेंसेस ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन ये इक्वेशंस होल्ड नहीं करती. इन इक्वेशंस में थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है टू अकाउंट दैट एबनॉर्मल बिहेवियर, टू अकाउंट दैट डिसोसिएशन और एसोसिएशन. डिसोसिएशन और एसोसिएशन को काउंट करने के लिए इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के एक्सप्रेशंस में कुछ परिवर्तन करना पड़ता है, किसी एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. हम कहते हैं एबनॉर्मल कंडीशंस पर ये इक्वेशन कभी होल्ड नहीं करेगी. एंड नाउ वी नीड टू कंसेप्चुअलाइज दैट एबनॉर्मल बिहेवियर. अब हमने वही एबनॉर्मल बिहेवियर को कंसेप्चुअलाइज करना है. मैं लिखता हूं. खास बात, कौन से सोल्यूट डिसोसिएट और एसोसिएट होते हैं? हम कहते हैं जनरली इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंसेस. वह सब्सटेंसेस जिनमें आयोनिक बॉन्ड होता है उन्हें इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंसेस कहा जाता है, इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है. जनरली ऐसे सब्सटेंसेस या तो डिसोसिएट कर जाते हैं या एसोसिएट कर जाते हैं, जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम्स. इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंसेस का डिसोसिएशन या एसोसिएशन देखने को मिलता है. हम कहते हैं जनरली इलेक्ट्रोलिटिक कंपाउंड्स या इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंसेस, इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? हैविंग आयोनिक बॉन्ड, जिनके
आयोनिक बॉन्ड होता है। जनरली इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंसेस अंडरगो dissociation or association due to which there is change in and due to which एक point लिख देते हैं, due to which number of solute particles get changed, due to which number of solute particles get changed which result in the change in behavior of these colligative properties, जिसकी वजह से colligative properties के behavior में change आ जाता है, and we termed that behavior as abnormal behavior. Abnormal behavior. मैं एक बार दोबारा बता देता हूं what I am trying to say. जनरली आमतौर पर इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंसेस कौन से, हैविंग आयोनिक बॉन्ड्स अंडरगो डिसोसिएशन और एसोसिएशन, वह डिसोसिएट हो जाते हैं या एसोसिएट हो जाते हैं, जिसके कारण ड्यू टू विच नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स गेट चेंज, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स चेंज हो जाते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज उन्हीं पर डिपेंड करती है, which results in the change of behavior of these colligative properties. जब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स चेंज हो जाएंगे तो colligative properties चेंज हो जाएंगी, और इसी colligative properties के चेंज को, बिहेवियर को चेंज को कहा जाता है abnormal behavior. Now we need to account this abnormal behavior and we used to say abnormal behavior is accounted by concept of Van Hoff factor. Denoted by इस abnormal behavior को हम अकाउंट करते हैं by the concept of Van Hoff factor. Van Hoff factor के माध्यम से हम इस behavior को अकाउंट करते हैं. अब एक बात मैं यहां पर बता दूं इसी समय, अभी मैंने बताया कि जो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, जब सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट और डिसोसिएट नहीं हो रहा है, अंडरगो एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं जा रहा है, तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज विल होल्ड दीज एक्सप्रेशंस, और अगर जब वह एसोसिएट और डिसोसिएट हो रहा होगा तो ये एक्सप्रेशंस होल्ड नहीं करेंगे. उस कंडीशन में एक हम वेन हॉफ फैक्टर का इस्तेमाल करेंगे, वेन हॉफ फैक्टर का यूज करेंगे, और इन वेन हॉफ फैक्टर का यूज कर इन एक्सप्रेशंस में कुछ चेंज कर दें, और चेंज करने के बाद उसके बाद जो रिजल्ट आएगा, दैट एक्सप्रेशंस आर एप्लीकेबल टू इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंसेस. उन सब्सटेंसेस के लिए, वह इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंसेस जो एसोसिएट या डिसोसिएट कर रहे हैं, उनके लिए हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस आ जाएंगे.
तो प्लीज कॉपी डाउन फर्स्ट, फिर मैं इस एब्नॉर्मल बिहेवियर को एलैबोरेट करता हूं। ये बात ध्यान रखी जाए that colligative properties are inversely proportional to the molecular mass of substance. Substance के molecular mass के inversely proportional। अब हमें इस वेंटो फैक्टर I को पहले समझना है, फिर हम इन एक्सप्रेशंस में चेंज करेंगे। सबसे पहले मुझे इस वेंटो फैक्टर I को समझना है। चलिए लेट अस स्टार्ट डीलिंग विद द abnormal behavior बड़े ध्यान से समझेंगे। अगेन दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ आवर चैप्टर। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वेंटो फैक्टर। इनफैक्ट ऐसा कोई एग्जामिनेशन होता ही नहीं है जिस एग्जामिनेशन में इस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन ना आए। हर एक तरह के एग्जामिनेशन में इस पर बेस्ड कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ थ्योरेटिकल प्रॉब्लम, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम हर बार देखने को मिलता है। And hence it's a very important article guys। चलिए let me first conceptualize about the Van't Hoff factor। मैं एक बार हेडिंग लिख देता हूं। Van't Hoff factor we denoted by I, and we are dealing with abnormal behavior of electrolytes। Abnormal behavior of electrolytes। इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्नॉर्मल बिहेवियर है या इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से एब्नॉर्मल बिहेवियर है? एब्नॉर्मल बिहेवियर ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट्स। ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट्स। चलिए लेट मी फर्स्ट डिफाइन दिस वेंट ऑफ फैक्टर I। हम कहते हैं colligative properties depend upon the number of solute particles, and hence we define that Van't Hoff factor also in terms of number of solute particles। हम कहते हैं जो ये colligative properties है ये number of solute particles पे डिपेंड करती है, इसलिए हम Van't Hoff factor को भी I को भी number of solute particles की टर्म्स में डिफाइन करेंगे। कैसे? नंबर ऑफ solute particles after dissociation or association। upon number of particles before dissociation or association। that we use to define I। जितने पार्टिकल्स डिसोसिएशन और एसोसिएशन के बाद है वो ऊपर रखे जाएंगे, जितने पार्टिकल्स डिसोसिएशन एसोसिएशन से पहले थे वो नीचे रखे जाएंगे। दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन।
इन दैट मैनर हम कहते हैं फॉर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के लिए पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं, जैसे कि NaCl डिसोसिएट होकर Na+Cl माइनस आयन दे देता है, तो उसने डिसोसिएट होकर दो पार्टिकल दे दिए, पहले एक ही पार्टिकल था NaCl, डिसोसिएट होकर दो पार्टिकल दे दिए, डिसोसिएशन पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन ज्यादा होंगे in comparison to number of particles before dissociation or association. Dissociation और association से पहले particles कम होंगे, हम लिखते हैं for dissociation, dissociation के लिए numerator is greater than denominator, numerator denominator से बड़ा होगा, अभी बताया नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे डिसोसिएट होने के बाद, तो ऐसी कंडीशन में I इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, I की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है। और वही एसोसिएशन के लिए एसोसिएशन होने पर, एसोसिएशन का मतलब होता है जुड़ना, डिसोसिएशन का मतलब था टूटना, एसोसिएशन का मतलब जुड़ना, तो एसोसिएशन के लिए नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन कम हो जाते हैं, एसोसिएट होने के बाद पार्टिकल्स कम हो जाते हैं, एसोसिएट होने से पहले पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं, जैसे कि 4 phosphorus atom associate to give 1 particle of P4, 4 phosphorus के पार्टिकल्स एसोसिएट होकर एक पार्टिकल बना रहे हैं P4 का, तो पहले एसोसिएशन से पहले पार्टिकल्स ज्यादा थे, एसोसिएशन के बाद पार्टिकल्स कम है, मतलब न्यूमरेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, और हम कहेंगे I must be smaller than 1, एसोसिएशन के लिए I की वैल्यू 1 से छोटी होगी। In that manner, we used to conceptualize Van 't Hoff vector. That is my one way of defining it. अभी मैंने इसको एक ही तरीके से डिफाइन करा है, and now let me define it in some more terms. मैं इसको कुछ और टर्म्स में भी डिफाइन करता हूं, कैसे देखेंगे। हम कहते हैं, ध्यान से समझना, देखिए कंसेप्ट क्या है मैं बताता हूं। हम कहते हैं कि जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट करते हैं, जो एक्सप्रेशंस अभी यहां लिखे थे, उन एक्सप्रेशंस के माध्यम से जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट करते हैं, तो हम उतने ही सॉल्यूट पार्टिकल्स लेते हैं जितने हम सॉल्यूट पार्टिकल्स डालते हैं। अगर मैंने 1 मोल ऑफ पार्टिकल डाले हैं तो कैलकुलेशन करते समय हम 1 मोल ऑफ पार्टिकल लेंगे, 2 मोल डाले हैं तो 2 मोल कैलकुलेशन करते वक्त लेंगे, 3 डाले हैं तो 3 मोल लेंगे कैलकुलेशन करते वक्त। वहां पर हम एसोसिएशन और डिसोसिएशन को कभी अकाउंट ही नहीं करते। वो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम पेन पेपर पे अपनी कैलकुलेशन से निकालते हैं, उन कैलकुलेशंस को करते समय हम कभी एसोसिएशन और डिसोसिएशन को अकाउंट ही नहीं करते। तो उस कंडीशन में जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है वो एक्चुअली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो हम पेन पेपर से कैलकुलेट कर रहे हैं उसे हम बोलेंगे कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसमें हमने एसोसिएशन और डिसोसिएशन को अकाउंट ही नहीं करा है। विदाउट अकाउंटिंग
एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो ये जो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी दैट मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स before association और dissociation। ये जो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। क्योंकि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम कैलकुलेट करेंगे इसमें एसोसिएशन और डिसोसिएशन अकाउंट ही नहीं होगी, तो ये उन्हीं पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जो बिना एसोसिएशन और डिसोसिएशन के हमने लिए थे। हम कहते हैं वाकई में जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जो हमें नजर आ रही है, भाई जो एक्सपेरिमेंट है वो तो गलत नहीं हो सकता, जो सामने नजर आ रही है चीज वो तो गलत नहीं हो सकती। इसका मतलब कैलकुलेशन में गलती हो रही है, यहां गलती हो सकती है, ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आ रही है उसमें गलती नहीं हो सकती, वो बिल्कुल सही आ रही है। इसका मतलब वो जो प्रॉपर्टी हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा निकाल रहे हैं, जो ऑब्जर्वेशंस के द्वारा निकाल रहे हैं, वह जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आ रही है वह एसोसिएशन और डिसोसिएशन को अकाउंट कर कर आ रही है। क्योंकि वो तो साफ साफ जो नजर आएगी वो तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन तो हुआ होगा पार्टिकल का, और हुआ होगा तो जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आएगा वो तो उसको अकाउंट करके ही आएगा ना। हम कैलकुलेशन करते वक्त हम नहीं अकाउंट कर रहे, वो हमारी गलती है, पर जब एक्सपेरिमेंट होगा तो वो अपने आप होगा, एसोसिएशन होगा, डिसोसिएशन होगा और रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग आएगा। तो जो ऑब्जर्व्ड या प्रैक्टिकली डिटरमाइंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी या एक्चुअल कॉलिगेटिव जो प्रॉपर्टी होगी, जो कब है विद कंसिडरिंग डिसोसिएशन और एसोसिएशन, जो डिसोसिएशन और एसोसिएशन को अकाउंट करने पर होगा, अपने आप ही होगा, that will be the actual colligative property। ये एक्चुअल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, वाकई में यही होगी, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा आ रही है। और यह जो प्रॉपर्टी होगी that will be directly proportional to number of solute particles after association or dissociation। यह जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी that will be directly proportional to the number of solute particles after dissociation or association। क्योंकि भाई जो एक्सपेरिमेंट के द्वारा रिजल्ट आएगा वो तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन होकर ही आएगा ना, वो तो ऑटोमेटिक है। अब मैं इस I को रिडिफाइन करता हूं, मैं क्या कहता हूं that I इसकी जगह नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या एक्चुअल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और इसकी जगह बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन की जगह मैं लिख सकता हूं कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आई की एक डेफिनेशन और क्या बन गई, ऑब्जर्व या एक्चुअल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या प्रैक्टिकली डिटरमाइंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन
calculated colligative property. That is my another expression for Van Hoff factor. Observed, actual or practically calculated colligative property. एक एक्सप्रेशन और लिख सकते हैं. अभी भी बताया जो colligative property है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास है. बताया ना, colligative property अभी भी बताया is inversely proportional to molecular mass of solute. solute के molecular mass के proportional है inversely. अब देखिए जो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी इसमें जो मॉलिक्यूलर मास होगा दैट विल बी नॉट बी द एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास. और ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड हम प्रैक्टिकली डिटरमाइन करेंगे, एक्चुअली आएगी एक्सपेरिमेंट्स में. इनमें जो मॉलिक्यूलर मास होगा दैट विल बी द ट्रू मॉलिक्यूलर मास. वाकई में जो मॉलिक्यूलर मास है उतना ही होगा. एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास ऊपर होगा, नीचे मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर एक्चुअल नहीं होगा. और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो मैं लिख सकता हूं एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास mass of solute upon calculated molecular mass of solute. इसको रीअरेंज करता हूं, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो विल गेट कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास ऑफ solute अपॉन एक्चुअल और ऑब्जर्व्ड molecular mass of solute. That will be my another expression for this Van Hoff factor. ध्यान से देखा जाए, यहां से जो एक्चुअली में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यहां पर जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो एक्चुअल होगा. पर यहां पर जब हम कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पेन पेपर पे कैलकुलेट करेंगे तो वहां मॉलिक्यूलर मास में कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, वो वाकई में एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास नहीं होगा. इसलिए यहां लिखा कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, यहां पर लिखा एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट. ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा and we'll get that final expression. In that manner we used to define that Van Hoff factor. इस तरीके से हम Van Hoff factor को define करते हैं. Number of solute particles after dissociation or association upon number of solute particles before dissociation or association. और इसके माध्यम से हमने ये दो expressions और निकाले. ये तीनों expressions आपको याद होने चाहिए. As these expressions will be used again and again, बार बार यूज करे जाएंगे. जो प्लीज कॉपी डाउन फास्ट, फटाफट कॉपी कर लिया जाए. एंड लेट मी डिस्कस द केस ऑफ डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन सेपरेटली. दोनों ही केसेस के लिए अलग अलग मैं Van Hoff फैक्टर को डिटरमाइन करता हूं, आई को डिटरमाइन करता हूं. You please copy down fast, फटाफट कॉपी कर लिया जाए.
चलिए, नाउ आफ्टर conceptualizing this Venn factor, let's move on to the case of dissociation and association. मैं दोनों का केस एक एक करके डिस्कस करता हूं, बड़े डिटेल में एलैबोरेट करता हूं। ये तीनों ही एक्सप्रेशंस आपको पता होने चाहिए। देखिए, यहां पर मैं एक बात और बता दूं आपको, हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन जरूर हो रही, पर जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, तो जो आपकी बची कुछ ही कंफ्यूजन है वह भी दूर हो जाएगी। अभी जो मैं बातें सिखा रहा हूं, आपको सिर्फ वो बातें समझनी है, सिर्फ वह बातों को सीखना है। मैं मानता हूं यहां पर हो सकता है आपके जहन में कुछ कंफ्यूजन तुरंत डेफिनेटली आपकी वहां पर कुछ कंफ्यूजन होंगी, पर होल्ड ऑन, दोस कंफ्यूजन, दोस डाउट्स विल बी ऑटोमेटिकली क्लियर, अपने आप क्लियर हो जाएंगे जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा। चलिए, लेट्स डिस्कस विद फॉर डिसोसिएशन। मैं लिखता हूं, Venn factor for dissociation। बड़े ही ध्यान से समझेंगे, मैं इसको बिल्कुल डिटेल में एलैबोरेट करूंगा। चलिए, लेट्स इमेजिन ए सॉल्ट, एक सॉल्ट को इमेजिन कर लिया जाए विच अंडरगो डिसोसिएशन। एक ऐसा सॉल्ट जो पानी में डाल देने पर, सॉल्वेंट में डाल देने पर वह डिसोसिएट हो जाता है। एक ऐसा सॉल्ट इमेजिन कर लिया जाए। लेट अस अज्यूम ए, ये कोई सॉल्ट है जो डिसोसिएट होता है, पानी में डालने पर डिसोसिएट होता है। कैसे डिसोसिएट होता है? Na, इस सॉल्ट का एक पार्टिकल डिसोसिएट होकर n पार्टिकल्स दे। One particle of the salt dissociates to give n particle of that salt। जैसे कि मैं समझाता हूं, फॉर एग्जाम्पल NaCl dissociate to give Na plus Cl minus I। एक पार्टिकल होकर कितने पार्टिकल दे रहे हैं? 2 पार्टिकल। तो यहां पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। सिमिलरली हम कहते हैं MgCl2 किस तरह से डिसोसिएट होगा? Mg2 प्लस 2Cl माइनस। यहां पर MgCl2 को एक पार्टिकल डिसोसिएट होगा, 3 पार्टिकल दे रहे हैं। कैसे? एक पार्टिकल Mg2 प्लस का, 2 पार्टिकल्स क्लोराइड आए। टोटल कितने पार्टिकल्स दिए? 3। तो N की वैल्यू हो गई 3। सिमिलरली हम कहते हैं K3 FeCN6 it get dissociated to give 3K plus FeCN6
3 minus. Now observe it. One particle of this is getting dissociate to give 4 particles. तो इस केस में n की वैल्यू हो जाएगी 4, जबकि हम कहते हैं Al2SO4 whole thrice. It dissociate to give 2Al 3 plus dissociate to give 2Al 3 plus 3 sulfate ion. मतलब in that case one particle is dissociating to give 5 particles. तो यहां पर इस केस में n की वैल्यू will be 5. तो n is the number of particles obtained by dissociation after dissociation from each particles. मैं लिख भी देता हूं. n is the number of particles obtained after dissociation by each particle. हर एक पार्टिकल का डिसोसिएट होकर जितने पार्टिकल्स मिल रहे हैं दैट विल बी माय n. अब हम कहते हैं जस्ट इमेजिन हमने एक सॉल्ट ले लिया है जिसका नाम है A एंड दैट वन पार्टिकल इज डिसोसिएटिंग इनटू n पार्टिकल्स. हम कहते हैं इनिशियली at time is equals to 0, जब वहां पर वह रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई होगी. वहां पर जब वह रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई होगी एट दैट कंडीशन हम कहते हैं मैंने इस सॉल्ट के A मोल्स ले लिए या A इज द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन. हम कहते हैं सॉल्ट के मैंने A मोल्स ले लिए या A इज द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन. मैं लिखता हूं moles of solute in 1 liter of solution. 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितने मोल्स हैं? A मोल्स हैं. तो इनिशियली कितने A मोल्स, और जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है, कुछ डिसोसिएशन ही नहीं हुआ है, तो यहां पर देयर विल बी 0 मोल्स. जब रिएक्शन हुई ही नहीं है, डिसोसिएशन हुआ ही नहीं है, तो वहां पर देयर विल बी नो प्रोडक्ट. कोई प्रोडक्ट होगा ही, कुछ मोल्स होंगे नहीं, 0 मोल्स. हम कहते हैं आफ्टर सम टाइम t, कुछ समय बाद this salt get into dissociate. This salt gets dissociated. यह सॉल्ट डिसोसिएट हो जाता है. जितना भी यह सॉल्ट डिसोसिएट हो सकता है वह उतना सॉल्ट डिसोसिएट हो जाता है. That salt get dissociated. अब यहां पर हम एक टर्म और डिफाइन करते हैं, अल्फा. अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. We used to define a term alpha, degree of dissociation. Now what is alpha? Moles dissociated out of 1 mole. Moles dissociated out of 1 mole. A
मोल में से जितने भी मोल डिसोसिएट हुए हैं दैट इज माय अल्फा। सपोज एक में से 0.3 मोल डिसोसिएट हो गए तो 0.3 विल बी अल्फा, 0.3 विल बी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एक मोल में से 0.6 मोल डिसोसिएट हो गए तो अल्फा विल बी 0.6। एक मोल में से जितने भी मोल डिसोसिएट हो जा रहे हैं दैट इज माय 0.6, दैट इज माय अल्फा। एक मोल में जितने मोल डिसोसिएट होंगे उसे अल्फा कहा जाएगा। अब एक मोल में कितने मोल डिसोसिएट हो रहे हैं, मैं साइड में कैलकुलेशंस कर रहा हूं। एक मोल में से अल्फा मोल डिसोसिएट हो रहे हैं, मेरे पास कितने मोल्स हैं, ए मोल्स हैं, तो कितने डिसोसिएट होंगे, ए अल्फा मोल्स डिसोसिएट हो जाएंगे, ए अल्फा मोल्स डिसोसिएट हो जाएंगे। एक मोल में से अल्फा डिसोसिएट हो रहे हैं तो ए में कितने होंगे, ए अल्फा डिसोसिएट होंगे। एक टॉफी 2 रुपए की है तो 3 टॉफी कितने की हुई, 6 रुपए। अब एक पार्टिकल डिसोसिएट होकर n पार्टिकल्स दे रहा है, एक पार्टिकल डिसोसिएट होकर n पार्टिकल्स दे रहा है, तो ए अल्फा पार्टिकल्स डिसोसिएट होकर कितने पार्टिकल्स देंगे, एक पार्टिकल डिसोसिएट होकर n पार्टिकल्स दे रहा है, लिखता हूं डिसोसिएट, डिसोसिएट होकर n पार्टिकल्स दे रहा है। तो ए अल्फा पार्टिकल्स, भाई इतने पार्टिकल्स तो डिसोसिएट हुए हैं, इतने पार्टिकल डिसोसिएट हुए, अब इतने पार्टिकल डिसोसिएट होकर कितने पार्टिकल्स देंगे, n ए अल्फा। एक पार्टिकल डिसोसिएट होकर n पार्टिकल दे रहा है तो ए अल्फा पार्टिकल डिसोसिएट होकर n अल्फा पार्टिकल्स देंगे। मैं पूछूं कितने पार्टिकल्स बच गए, रिमेनिंग A minus A alpha and n A alpha. These will be the total particles which left behind. इतने पार्टिकल्स बच गए होंगे। इसके लिए n की वैल्यू मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर हो सकता है इट विल बी नॉट क्लियर। In that manner. अब we want to calculate I, हमें I निकालना है। चलिए I के लिए हमने लिखा है number of particles after dissociation upon number of particles before dissociation, dissociation से पहले। अब डिसोसिएशन के बाद कितने पार्टिकल्स थे, टोटल पार्टिकल्स कितने बच गए थे, A माइनस ए अल्फा प्लस एन ए अल्फा। इसी को लिखता हूं A माइनस ए अल्फा प्लस एन ए अल्फा। और पहले कितने पार्टिकल्स थे, हमने कितने पार्टिकल्स लिए थे, ए पार्टिकल्स। ए कॉमन आउट आ गया, ऊपर नीचे से कैंसिल हो गया, विल गेट ए माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। दैट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर
Van't Hoff factor for dissociation. और अगर मैं इसी को थोड़ा सा रीअरेंज कर दूं तो यहां से हमारे को क्या मिल जाएगा, अल्फा कम्स आउट टू बी I minus 1 I minus 1 upon n minus, that will be my alpha. Observe it. अगर आप इसको रीअरेंज करके अल्फा की वैल्यू निकालेंगे then it will be I minus 1 upon n minus 1. In that manner we had calculated the value of I as well as alpha. Now मैं कहता हूं if दो कंडीशन बना देते हैं. कंडीशन 1 पहली, if अल्फा इज इक्वल्स टू 0, अल्फा 0 है. अल्फा 0 कब होगा, जब वहां पर डिसोसिएशन ही नहीं हुआ होगा. अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मोल डिसोसिएटेड आउट ऑफ 1 मोल. अल्फा 0 हो गया मतलब एक में से कोई मोल डिसोसिएट हुआ ही नहीं है. नो डिसोसिएशन, कुछ डिसोसिएशन हुआ ही नहीं है. दैट मींस नो डिसोसिएशन. और जब डिसोसिएशन नहीं हुआ होगा, अल्फा 0 होगा, तो ऑब्जर्व इट, आई की वैल्यू विल बी 1. आई की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी 1. और जब आई की वैल्यू 1 आएगी दैट मींस देयर इज नो एबनॉर्मल बिहेवियर. कोई एबनॉर्मल बिहेवियर नहीं है. जनरली जो नॉर्मल बिहेवियर है वही है. सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, सॉल्यूट डिसोसिएट नहीं हो रहा है. डिसोसिएट नहीं हो रहा है तो एबनॉर्मल बिहेवियर नहीं है. अल्फा 0 होने का मतलब I1 हो गया. I1 का मतलब वहां पर सॉल्यूट डिसोसिएट नहीं हो रहा है. सॉल्यूट डिसोसिएट नहीं हो रहा है मतलब है सॉल्यूट नॉर्मल है, जनरल सॉल्यूट है, इलेक्ट्रोलाइट नहीं है. उसका सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल बिहेवियर. हम कहेंगे दैट मींस नो एबनॉर्मल बिहेवियर. Second condition, if alpha is equals to 1, अल्फा 1 के बराबर हो जाए. अब अल्फा 1 के बराबर कब होता है जरा सोचेंगे. हम कहेंगे when it get 100% डिसोसिएटेड. जितना डाला है सारा का सारा डिसोसिएट हो जाए, एक मोल में से सारे के सारे डिसोसिएट हो जाए, then alpha is equals to 1. अल्फा की डेफिनेशन क्या है, मोल डिसोसिएटेड आउट ऑफ 1 मोल. एक मोल में से कितने मोल डिसोसिएट हो रहे हैं, जितने डाले वो सारे के सारे डिसोसिएट हो जाए. That is my 100% dissociation. If it dissociate 100%, पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जा रहा है, 100% डिसोसिएट हो जा रहा है. और जब I की वैल्यू अल्फा की वैल्यू 1 होगी then I will be equals to n. I की वैल्यू n के बराबर होगी. That means the abnormal behavior will be maximum. सबसे ज्यादा abnormal behavior होगा. पर जितना डिसोसिएट हो सकता था डिसोसिएट हो गया, मैक्सिमम पॉइंट आ गए. That is the maximum abnormal behavior. उस कंडीशन में जो abnormal behavior होगा वह मैक्सिमम होगा, I n के बराबर होगा. मतलब
आई यहाँ पर 2 के बराबर, अगर 100% NaCl का डिसोसिएशन हो जाए तो I will be equals to 2. अगर MgCl2 का 100% डिसोसिएशन हो जाए then I will be equals to 3. अगर K3FeCl6 का 100% डिसोसिएशन हो जाए then N will be 4, I will be 4. और अगर A2SO4 thrice का 100% डिसोसिएशन हो जाए then I will be 5, I की वैल्यू 5 के बराबर होगी. हम कहते हैं that means maximum abnormal behavior. Maximum abnormal behavior. In that manner, we used to calculate Ventov factor for the case of dissociation. बड़ा सरल है, आसानी से निकाला है. इनिशियल मोल्स ए लिए, इनिशियली ये 0 होगा, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है. अल्फा बी द मोल डिसोसिएटेड आउट ऑफ 1 मोल, एक में से कितने डिसोसिएट हुए? तो अगर एक में से अल्फा हुआ है तो ए में कितने होंगे? ए अल्फा. अब एक मोल डिसोसिएट होकर n पार्टिकल्स दे रहे हैं तो a अल्फा मोल डिसोसिएट होकर कितने पार्टिकल्स देंगे? Na अल्फा. कितने बच गए? a माइनस a अल्फा, Na अल्फा. अब I number of particles after dissociation, number of particles before dissociation. Dissociation के बाद particles a minus a alpha plus Na alpha और उससे पहले a ऊपर नीचे कॉमन आउट कैंसिल आउट हो गया and will get pi. और इस तरीके से हमने यहाँ पर दो केसेस बना लिए. यहां से मैं एक बात कंक्लूड कर सकता हूं, यहां से हम एक बात क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो अल्फा की वैल्यू होगी, दैट वैल्यू ऑफ अल्फा conclusion, जो अल्फा की वैल्यू होगी that always lie between 1 to 0 और I की वैल्यू always lie between n to 1. डिसोसिएशन के लिए अल्फा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी और आई की वैल्यू n और 1 के बीच में होगी. That's all about the concept of dissociation. पहला concept, the concept of dissociation. You please first copy down. फटाफट इसको कॉपी कर लिया जाए and then after I will explain it about the concept of association. ये concept समझाने के बाद मैं अगला आर्टिकल, अगला concept association पर समझाऊंगा. You please first copy down fast. चलिए, now let us start dealing with the case of association. मैं association का केस समझाता हूँ.
नाउ अगेन एसोसिएशन का केस समझने के लिए जस्ट इमेजिन ए सॉल्ट, जस्ट इमेजिन ए कंपाउंड, अ सब्सटेंस व्हिच अंडरगो एसोसिएशन। एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा कंपाउंड इमेजिन कर लिया जाए जो एसोसिएशन में जाता है, जो एसोसिएशन को शो करता है। हम कहते हैं देयर आर लॉट ऑफ कंपाउंड्स व्हिच अंडरगो एसोसिएशन। तरह तरह के बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, इनफैक्ट बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जो एसोसिएशन में जाते हैं, जो एसोसिएशन को शो करते हैं। विल डिस्कस ऑल ऑफ दैम। हम कुछ एग्जांपल्स भी डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। जिस तरीके से डिसोसिएशन को कैलकुलेट करें, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से एसोसिएशन को कैलकुलेट करें। चलिए डिस्कस करते हैं वेंटो फैक्टर फॉर एसोसिएशन। Van 't Hoff factor for association. Just imagine a salt which undergo association, and let us B is a substance, is a compound that undergo association. N particles of B associate to give one particle of B. For example, मैं इसी समय कुछ एग्जांपल्स आपके सामने डिस्कस कर लेता हूं। Four atoms of phosphorus associate to give one particle of P4. चार पार्टिकल जोड़कर एक पार्टिकल देते हैं। तो यहां पर n की वैल्यू क्या रहेगी? 4 पार्टिकल्स, 4 पार्टिकल जुड़कर एक पार्टिकल दे रहे। सिमिलरली 8 particles of sulfur gives 1 particle of S8. सल्फर के 8 एटम्स एसोसिएट होकर एक पार्टिकल देते हैं एसिड का। सिमिलरली बेंजोइक एसिड या एसिटिक एसिड, 2 particles of acidic acid undergo association to give one particle, means it undergo dimerization. 2 particles of acidic acid undergoes dimerization to form one particle. 2 पार्टिकल एसिडिक एसिड के डाइमर बनाकर डाइमराइजेशन में जाकर एक पार्टिकल बना लेते हैं। कैसे, मैं समझाता हूं।
in that manner. These are the two particles of acidic acid which undergo dimerization. Actually होता क्या है, दोनों पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस. दोनों के बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जिसकी वजह से दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ डाइमर बनाकर इस फॉर्म में रहते हैं. दिस इज द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. लेट मी कलर दैट. मैं इसको कलर भी कर देता हूं. मैं इनफैक्ट इसको येलो कलर से शो करता हूं. Now it will be much more clear. That is intermolecular hydrogen bond. बॉन्ड कुछ इस तरीके से डाइमर बनाकर बेंजो एसिटिक एसिड डाइमराइज होकर इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ डाइमर. अब कुछ इसी तरीके का सॉल्ट हमने इमेजिन कर रखा है जो एसोसिएशन में पार्टिसिपेट कर रहा है. एन पार्टिकल्स एसोसिएट होकर एक पार्टिकल बना लेते हैं. अगेन लेट अल्फा बी द डिग्री ऑफ एसोसिएशन, बी डिग्री ऑफ एसोसिएशन. And what is alpha? Moles associated out of one mole. Moles associated out of one mole. एक मोल में से जितने मोल एसोसिएट कर गए हैं दैट विल बी अल्फा. अगर एक में से 0.2 मोल एसोसिएट कर गए हैं तो अल्फा विल बी 0.2. 0.3 मोल एसोसिएट कर गए हैं तो अल्फा विल बी 0.3 मोल एसोसिएटेड आउट ऑफ 1 मोल. एंड लेट A be the concentration of that substance, A moles per liter. A moles of solute is present in 1 liter of solution. एक लीटर ऑफ सॉल्यूशन में वहां पर इट इज हैविंग A moles. तो इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है इनिशियली टाइम 0 पर there will be A moles and there will be 0. जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है तो कुछ एसोसिएशन ही नहीं हुआ होगा. आफ्टर टाइम t, कुछ समय बाद, आफ्टर टाइम t कुछ मोल्स एसोसिएट कर गए होंगे. जब एक में से अल्फा मोल एसोसिएट हो रहे हैं, एक में से अल्फा मोल्स एसोसिएट हो रहे हैं तो A में कितने एसोसिएट होंगे? वंस अगेन A अल्फा एसोसिएट होंगे. ध्यान से समझेंगे. एक मोल में से कितने मोल एसोसिएट हो रहे हैं? अल्फा मोल्स. तो A में कितने एसोसिएट होंगे? A अल्फा. अब N पार्टिकल्स एसोसिएट होकर कितने पार्टिकल दे रहा है?
एक पार्टिकल दे रहा है एसोसिएट होकर, तो एक पार्टिकल कितने दे रहा है एसोसिएट होकर 1/n, तो a अल्फा पार्टिकल्स एसोसिएट होकर कितने देंगे a अल्फा बाय n पार्टिकल्स। भाई एक n पार्टिकल एसोसिएट हो रहे हैं, n पार्टिकल बना रहे हैं, तो एक पार्टिकल एसोसिएट होकर कितने बनाएंगे 1/n पार्टिकल्स। अब कितने पार्टिकल का एसोसिएशन हो रहा है a अल्फा पार्टिकल्स का एसोसिएशन हो रहा है, तो a अल्फा पार्टिकल्स एसोसिएट होकर कितने बनाएंगे a अल्फा बाय n पार्टिकल्स। यूनिटरी मेथड है, एक टॉफी 2 रुपए की है तो 3 टॉफी कितने की हुई, तो a अल्फा पार्टिकल्स एसोसिएट होकर बनाएंगे a अल्फा बाय n पार्टिकल्स। कितने बचे होंगे रिमेनिंग a minus a alpha upon a alpha by n. This will be the remaining particles. Now once again we have to calculate Vent of factor I. हमें Vent of factor निकालना है I. How we used to calculate? Number of particles after association upon number of particles before association. तो जरा देखेंगे कितने पार्टिकल्स से एसोसिएट होने के बाद a माइनस a अल्फा प्लस a अल्फा बाय n अपॉन a। These are the particles after association. A कैंसिल आउट हो गया ऊपर नीचे से कॉमन निकालकर, we left with 1 minus alpha plus alpha by n, that will be the value of I. Observe it. I will be 1 minus alpha plus alpha by n. बस थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूँ, that will be much clear. लीजिए I की वैल्यू आ गई और इसी समय यहां से हम अल्फा की वैल्यू को निकाल सकते हैं, जिस तरीके से पिछले केस में निकाला था ठीक उसी तरीके से यहां से भी निकाल सकते हैं। अल्फा विल बी इक्वल्स टू अल्फा की वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस आई, 1 माइनस आई अपॉन 1 minus 1 by n. That will be the value of alpha. Observe it. अल्फा की वैल्यू भी आ गई और I की वैल्यू भी आ गई। Now once again, if alpha is equals to 0, अगर अल्फा 0 है अल्फा इज इक्वल्स टू 0, मतलब नो एसोसिएशन, नो एसोसिएशन, वहां पर कोई पार्टिकल एसोसिएट ही नहीं हुआ है, नो एसोसिएशन विल टेक प्लेस।
वहां पर कोई एसोसिएशन हुआ ही नहीं है। जब एसोसिएशन ही नहीं हुआ है देन व्हाट डज इट मींस, तो वहां पर i की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा इज इक्वल्स टू 0 देन i इज इक्वल्स टू 1। मतलब जितने पार्टिकल्स पहले थे अब भी उतने ही हैं, जितने डाले थे उतने ही हैं, ना एसोसिएशन हुआ है ना डिसोसिएशन हुआ है। मैंने 2 मोल पार्टिकल्स डाले थे तो 2 के 2 ही हैं, नो एसोसिएशन विल टेक प्लेस एंड हम कहेंगे एट दैट कंडीशन नो एबनॉर्मल बिहेवियर, कोई भी एबनॉर्मल बिहेवियर नहीं होगा, नो एबनॉर्मल बिहेवियर। वहीं if alpha is equals to 1 then what does it means, it means सारा का सारा एसोसिएट हो गया, जितना डाला था वह सारा का सारा एसोसिएट हो गया, मतलब 100% एसोसिएशन। जितना डाला है सारा का सारा एसोसिएट हो गया, 100% एसोसिएशन। और जब 100% एसोसिएशन हो जाएगी, अल्फा 1 हो जाएगा, तो जरा चेक करेंगे i की वैल्यू क्या नजर आएगी, व्हाट विल बी i, i will be 1 by n। अगर इसका 100% एसोसिएशन हो जाए then i will be 1 by 4, n की वैल्यू 4, i will be 1 by 4। 100% एसोसिएशन हो जाए i will be 1 by 8 क्योंकि n is equals to 8। यहां पर n is equals to 2 है इसके लिए, और अगर इसका 100% एसोसिएशन हो जाए मींस i will be equals to 1 by 2 क्योंकि n is equals to 2। अल्फा i 0 रखेंगे, चेक कर लीजिए, अल्फा अगर 0 हो जाएगा, सॉरी अल्फा 1 हो जाएगा तो इट विल बी इक्वल्स टू 1 by n, 1 से 1 कट गया, विल गेट 1 by n। इसका मतलब मैक्सिमम एबनॉर्मल बिहेवियर, उस कंडीशन पे देयर विल बी मैक्सिमम एबनॉर्मल बिहेवियर। मैक्सिमम एबनॉर्मल बिहेवियर। अच्छा, एक खास बात मैंने अभी बताई थी, डिसोसिएशन के लिए i की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है, ये मैंने बताया था, और एसोसिएशन के लिए i की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती, हमेशा i की वैल्यू एसोसिएशन के लिए 1 से छोटी होगी। देखो मैक्सिमम 1 है और 1 बाय, तो यहां से हम अगेन एक बात कंक्लूड कर सकते हैं, कंक्लूजन, अल्फा की वैल्यू will lie in between 0 to 1 and value of i 1 पर 1 by n, 0 पे। These are the two conclusions. That's all about the concept of association. In fact, that's all about the concept of association and dissociation. मैंने दोनों ही कंसेप्ट डिसोसिएशन और एसोसिएशन के कंसेप्ट समझा दिए हैं, दोनों के लिए वेंटो फैक्टर की वैल्यू को डिटरमाइन कर दिया है, एंड दैट्स ऑल अबाउट द एसोसिएशन। यू प्लीज कॉपी डाउन फास्ट, फटाफट कॉपी कर लिया जाए, देन विल मूव फॉरवर्ड। नाउ अब
एसोसिएशन और डिसोसिएशन के लिए वेंटो फैक्टर को डिटरमाइन करने के बाद, एग्जामाइन करने के बाद, लेट अस ट्राई टू डू सम चेंजेस इन आवर एक्सप्रेशंस ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हमने जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के एक्सप्रेशंस लिखे थे उसमें हम कुछ चेंजेस कर देते हैं सो दैट वी कैन अप्लाई दोज एक्सप्रेशंस डायरेक्टली। हम उन एक्सप्रेशंस को डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स। ऐसे सॉल्यूट्स जो एसोसिएट या डिसोसिएट हो रहे हैं उनके लिए उन एक्सप्रेशंस को हम डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे। आप इसे कॉपी कर लीजिए, फिर मैं उन एक्सप्रेशंस में कुछ चेंजेस करा देता हूं फॉर सॉल्यूट्स व्हिच अंडरगो डिसोसिएशन और एसोसिएशन। कॉपी डाउन फास्ट।